کیونکہ افغانستان ویسے بھی بہت پرو ہندوستان رہا ہے تھرو آؤٹ. پانی جو ہے یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کا جھنڈا جلانے کا بہت دفعہ ارتکاب کر چکے ہیں کہ نہ میرے قائد اعظم نے اور نہ میرے ملک نے اس اسرائیل کو تسلیم کیا ہے. میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کروں گا اور اس پر سائن نہیں کروں گا. انہوں نے واضح کہا کہ تم لوگ قاتل ہو، اسرائیل ہار جائے گا. تو انہوں نے کہا یہ آپ کی غلط فہمی ہے. تو وہ پھر پوری دنیا کو اپنا غلام بنا لیتا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دردانہ شہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں ولاگ ود دردانہ شہاب. خطے میں بگڑتی ہوئی صورتحال جو ہے وہ اس میں کہیں نہ کہیں جہاں آپ کے ساتھ ہندوستان پاکستان جو چپلش چل رہی ہے، جو فائٹ چل رہی ہے، اس میں جو افغانستان والا معاملہ ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں ہندوستان کا ہاتھ نظر آتا ہے. کیونکہ افغانستان ویسے بھی بہت پرو ہندوستان رہا ہے تھرو آؤٹ، جبکہ افغانستان پہ احسانات پاکستان نے کیے ہیں. افغانستانیوں کو جو ہے پناہ پاکستان نے دی ہے اور وہ افغانی جو ہے یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کا جھنڈا جلانے کا بہت دفعہ ارتکاب کر چکے ہیں اور یہاں سے روزی کما رہے ہیں، روٹی کما رہے ہیں، یہاں پہ بڑے بڑے کاروبار کر رہے ہیں، لیکن یہاں کے ساتھ اس زمین کے ساتھ مخلص نہیں ہے. ان کے دل میں ایک چپقلش پاکستان کے لیے ہے اور وہ چپقلش کا وہ گاہے بگائے اظہار کرتے رہتے ہیں. اور ہمارے جو سرحدی آپ کا جو کے پی کے جو سرحدی علاقے ہیں، جو بارڈرز افغانستان سے لگتے ہیں، وہ آئے دن کسی نہ کسی دہشت گردی کا شکار رہتے ہیں وہ علاقے. اور اس میں جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کہا یہ جاتا ہے کہ ہماری فورسز کا بھی یہ کہنا ہے، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں افغانستان ملوث ہوتا ہے. افغانستان ملوث ہوتا ہے، افغانستان کے لوگ ملوث ہوتے ہیں، لیکن بیہائنڈ دا سین اس میں کہیں نہ کہیں ہندوستان ضرور ملوث ہوتا ہے. اور ہندوستان میں چونکہ اس کے اندر خود میں طاقت نہیں ہے کہ وہ کھل کے پاکستان کا مقابلہ کر سکے، تو وہ اس قسم کے چھوٹے چھوٹے پاکٹس بناتا ہے اور جس میں پاکستان کے امن کو جو ہے وہ ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن پاکستان جو ہے وہ ہمہ وقت چکنا رہتا ہے اور اس کو اپنے دشمن کا بہت اچھی طرح سے پتہ ہے. اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کے دشمن کس کس کونے میں کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. نہ صرف پاکستان کے کس کس کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ دنیا کے کس کس کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں تک پاکستان کو اپنے ان دشمنوں کو بہت بخوبی پتہ ہے. انڈین اسپائز جو ہیں وہ جتنے زیادہ ایکسپوز ہوئے ہیں پوری دنیا میں مختلف ممالک کی جاسوسی میں، لیکن ان کا جو بیسک ٹارگیٹ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف کسی طرح کی یہ جو کہنا چاہیے کہ تخریبی کارروائیاں وہ کرتے رہے ہیں. لیکن الحمدللہ پاکستان نے ہمیشہ سے سروائیو کیا اور ہمیشہ سے ایسے لوگوں کا مقابلہ کیا ہے. اب جو ابھی افغانستان اور پاکستان کی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، لیکن اسی میں خوشائند خبر جو ہے وہ غزہ کے حوالے سے حماس اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ بندی کا اعلان ہوا ہے، اور اس جنگ بندی کے اعلان میں جو ہے وہ پوری دنیا اس کو خوشائند قرار دے رہی ہے اور مسلمان بالخصوص اس کو خوشائند قرار دے رہے ہیں کہ کم از کم غزہ میں جو ہے جو قتل و غارت گری اسرائیل نے مچا رکھی تھی وہ کم از کم اب اس کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جا رہا ہے. اور اس میں مسلم امہ کا یا مسلم ممالک کا اتنا بڑا کردار ہو یا نہ ہو، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ غیر مسلم ممالک کے وہ عوام، وہ لوگ جو اپنی سڑکوں پہ نکل کر آئے اور جنہوں نے پرامن احتجاج کر کے لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل کر آئے. یورپین کنٹریز میں آپ دیکھ لیجئے کہ جب یہ سمود فوٹیلا کے لوگوں کو جب گرفتار کیا گیا تو وہاں پہ جس طرح سے لوگ روڈز پہ نکل کر آئے ہیں یورپین کنٹریز کے، اس کے بعد انہوں نے پہلے تو پرامن احتجاج کیا، لیکن جب ان کو یہ نظر آیا کہ ان کی بات نہیں سنی جا رہی، نہیں مانی جا رہی، ظلم بڑھتا ہی جا رہا ہے، تو پھر وہ پرتشدد احتجاج کی طرف جانے لگے. ابھی گزشتہ دنوں ہم سینیٹر مشتاق جو گئے تھے پاکستان کی طرف سے ریپرزینٹ وہ ذاتی حیثیت میں گئے تھے، وہ پاکستان کو تو کیا ریپرزینٹ کر رہے تھے، حامد میر صاحب کو انٹرویو دے رہے تھے. اور جب اس کو بتایا، حامد میر صاحب نے ان سے سوال کیا کہ نائب وزیر اعظم جو اسحاق ڈار صاحب ان کو بتا رہے تھے، اپڈیٹ دے رہے تھے آپ کی رہائی کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے جس طرح سے آپ کے پاس ایک برٹش ایمبیسیڈر کو بھیجا آپ سے بات کرنے کے لیے، نیگوشیٹ کرنے کے لیے، پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے ایجپٹ مصر کے جو تھے ان لوگوں کو انوالو کیا. تو انہوں نے واضح طور پہ بتایا، مشتاق احمد صاحب نے جس طرح سے بتایا کہ میں نے انکار کیا کہ میں اس پر سائن نہیں کروں گا، جس میں وہاں کا جج یہ کہہ رہا تھا، اسرائیلی جج یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے جو ہے اسرائیلی حدود کی خلاف ورزی کی ہے اور قانون نے آپ نے جرم کیا ہے. تو مشتاق احمد صاحب کا یہ کہنا تھا کہ نہ میرے قائد اعظم نے اور نہ میرے ملک نے اس اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، تو اس لیے جب ہم اسرائیل کو مانتے ہی نہیں ہیں تو ہم اس کی حدود کی خلاف ورزی کا
बात ही कैसे कर सकते हो, और मैं किसी ऐसे पेपर पर साइन नहीं करूंगा जो आप मुझसे जबरन करवाएंगे। उसमें ब्रिटिश जो एम्बेसडर थे उन्होंने उनको धमकी भी दी कि आपको यहाँ आप कैद हो जाएंगे और यहाँ पर आपकी हड्डियां गल और सड़ जाएंगी, लेकिन उनका जज्बा ईमानी इतना शदीद था बकौल उनके, जो उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा चाहे मेरी हड्डियां गल सड़ जाए, मेरे जिस्म जो है बूटी बूटी हो जाए, लेकिन मैं इसराइल को तस्लीम नहीं करूंगा और इस पर साइन नहीं करूंगा। यही वजह है कि अभी तक जो जैसे कहते हैं कि इसराइल ने गो के बहुत ज्यादा मनमाने किए, उसने बहुत ज्यादा जुल्म और बर्बरियत किए, गो के उसने इंसानियत सोज मजालिम जो है वो गजल के अवाम के ऊपर किए हैं, लेकिन उसके बावजूद इसराइल अपना एजेंडा पूरा सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं कर सका कि चंद ऐसे लोग जिनकी आवाज उठाने ने, जिनके सड़क पर निकल आने के ने, जिनके समंदरी रास्ते से और गजा पहुंचने के तरीक़ेकार ने, और बहुत सी ऐसी चीजों ने फलस्तीन के मामले को किसी हद तक हल करने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। और इसराइल को जो है वो दो कदम पीछे जो होकर बैकफुट पर जाकर खेलना पड़ा, और इसमें नो डाउट ट्रम्प साहब का भी बड़ा किरदार है। और क्या गुज़िश्ता दिनों जिस तरह से रशियन पार्लियामेंट में एक रशियन ने, जो रशियन यहूदी थे, ज्यूज थे, उनको खिताब करते हुए कहा कि तुम दुनिया की हर पार्लियामेंट में तुम लोग मौजूद हो और तुम लोग जो है वहां बैठकर वहां की पॉलिसीज बनाते हो और वहां की पॉलिसीज पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हो। उन्होंने वाज़ेह कहा कि तुम लोग कातिल हो और तुम जो पूरी दुनिया की हर जगह पर, जिस तरह से आप यूरोप में ले लें, अमेरिका में ले लें, कनाडा में ले लें, जहां भी आप चले जाइए डेवलप्ड कंट्रीज में, वहाँ की पार्लियामेंट में जियोज मौजूद है, दैट्स द ट्रू। तो वो वहाँ की पॉलिसी मेकिंग में बड़ा अपना किरदार अदा करते हैं, और उनकी पॉलिसी मेकिंग जो है सिर्फ यहूदियों के मफाद में होती है और उसके उसके मफाद के तहत वो अपने काम करते हैं। और अब जितना ज्यादा इसराइल और यहूदी इस गजा के वार में जितने जलील और ख्वार हुए पूरी दुनिया में, इतना तो शायद इसराइल कभी हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि उसको बड़ा घुमंड था कुछ अरसे पहले से। जैसे नेतन्याहू साहब बता रहे हैं कि आपके हाथ में जो मोबाइल है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी हमने बनाया है, और बहुत सारे अपने कारनामे वो बता रहे थे। फिर उसके बाद उनका ये कहना था कि आप समझते हैं कि इसराइल खत्म हो जाएगा, ये इसराइल हार जाएगा, तो उन्होंने कहा ये आपकी गलत फहमी है, दुनिया को हम चला रहे हैं, उनका ये दावा था। क्योंकि अस्तगफुरुल्लाह, जैसे फिरौन ने कहा था कि मैं खुदा हूँ, खुदाई का दावा किया था, और अल्लाह ने किस तरह से उसको समंदर बुर्द किया था। इसी तरह से नेतन्याहू जिस तरह से ये समझ रहे हैं कि वो इस वक्त खुदाई का दावेदार है कि दुनिया को हम चला रहे हैं, तो ये नजर आता है कि उनका अंजाम भी फिरौन से बदतर होगा। और इसमें आज के इस मतलब तरक्की याफ्ता दौर में 2025 में अब वो वक्त चला गया क्या दुनिया के किसी कोने में आप जुल्म करें, बर्बरियत करें और दुनिया को पता ना चले, लेकिन अब जो है मिनटों और सेकंड्स में जो है ना वो बात दुनिया तक पहुंच जाती है। और यही वजह है कि हम जो डेवलप कंट्रीज हैं, हम वो हमसे डेवलप इसलिए हैं कि वहाँ पर सबसे बड़ी जो है जिम्मेदारी किसी भी हुकूमत की या किसी भी रियासत की होती है, वो इंसानी हुकूक की होती है। और वो उनकी तरबियत का हिस्सा है इंसानी हुकूक, और उसी तरबियत के हिस्से की वजह से उन्होंने बिना किसी मजहबी तफरीक के गजा के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई, उन्होंने एहतजाज किए, उन्होंने हड़तालें की, और जिस जिस तरह से भी वो कहना चाहिए कि आवाज़ को अपनी उठा सकते थे, उन ममालिक ने, उन लोगों ममालिक ने नहीं, सरबराहान ने नहीं, उन मुल्कों की अवाम ने अपनी हुकूमतों पर प्रेशर बिल्डअप किया कि फ़लस्तीन के खिलाफ जो भी कार्रवाई हो रही है और इसराइल की इस दरअंदाजी और बदमाशी को कंट्रोल करना ज़रूरी है। और ये होना इसलिए भी ज़रूरी था कि जिस तरह से इसराइल का प्लान है ग्रेटर इसराइल बनाने का, और जिस तरह से इसराइल सोच रहा है था, अभी तक तो मैं ये कहूँगी कि था कि जिस तरह से वो ग्रेटर इसराइल बनाने चाह रहा था, वो इसका ख्वाब अगर खुदा ना खास्ता पूरा हो जाता, तो वो फिर पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना लेता, और उसका सबसे ज़्यादा शिकार मुस्लिम ममालिक और मुस्लिम लोग भी होते। तो अल्लाह ताला ने इस वक्त अभी देखते हैं कि ये माहिदा किस हद तक जो है वो वर्केबल है, किस हद तक हमास और इसराइल में अभी तो यही हुआ है कि कैदी एक दूसरे के रहा कर दिए जाए, जंग बंदी कर दी जाए, गजा में गजा मतलब जो अद्वियात और गजा पहुंचाई जाए, और उसके बाद जो है इसराइली फौज का इनखला गजा से हो जाए। अगर ये तमाम चीज़ें और ये तमाम मामलात इसी तरह से तय हो जाते हैं, तो ये एक बहुत खुश आइन बात है जिसपे दुनिया के तमाम ममालिक ने, चाइना, मिस्र, टर्की, अरब कंट्रीज, इन सब ने जो है यह हमास और इसराइल माहदे पर जो है खुशी का इजहार किया है। क्योंकि दुनिया इस वक्त बेबस हो गई थी इसराइल की
इस तमाम तर बदमाशी के पीछे, क्योंकि इसके साथ साथ जो मुल्क था, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है अमेरिका, और जो पॉलिसी मेकर है दुनिया का, जो दुनिया में पॉलिसीज बनाता है कि कहाँ पर कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है अप्लाई करने चाहिए, तो वो अमेरिका मतलब छुप कर भी और खुल कर भी इसराइल के साथ खड़ा हुआ था। लेकिन अब अमेरिका में भी ट्रम्प साहब जहाँ भी जा रहे हैं, जिस तकरीब में जा रहे हैं, किसी प्राइवेट डिनर पे जा रहे हैं या किसी पब्लिक डिनर पे जा रहे हैं, पब्लिक तकरीबात में जा रहे हैं, तो वहाँ पर ये नारे लग रहे हैं, फ्री फिलिस्तीन के नारे लग रहे हैं। तो ये एक इंटरनेशनल प्रेशर इतना बिल्डअप हुआ है कि इसराइल को, नेतन्याहू को और ट्रम्प को सोचना पड़ा कि अमन माहिदा बहुत ज़रूरी है। अगर ये अमन माहिदा नहीं होता तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के ममालिक के सरबराहान तो नहीं, लेकिन अवाम जो है वो इसराइल के खिलाफ खड़ी हो जाती, और खड़ी तो हो ही गई है, लेकिन इसराइल के खात्मे के लिए फिर इसराइल की जानिब बढ़ जाती है। वो कहते हैं ना कि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो ख़त्म हो जाता है। तो ये नेतन्याहू का जुल्म अब हद से बढ़ गया था, और अब इसका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। और यही इसी तरह की ये तमाम चीज़ें अगर होती, इस तरह के अमन माहे होते रहे दुनिया में, जहाँ जहाँ भी जिन ममालिक के दरमियान भी इस कस्म के कन्फ्लिक्ट है, तो वो कन्फ्लिक्ट सॉल्व होना ज़रूरी है। सबको जियो और जीने दो की पॉलिसी पर अमल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर मुल्क अपनी तामीर और तरक्की और अपने उसके हुकूक के लिए वो जितनी भी कोशिश कर सकता है, वो अपनी स्टेबिलिटी के लिए कोशिश करे। किसी दूसरे मुल्क को कोई हक नहीं पहुंचता कि किसी भी मुल्क की आज़ादी को सल्ब करने की कोशिश करे। और ये अगर इसी तरह से कौमें जागती रहीं, इसी तरह से लोग जागते रहे, तो जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से इस दुनिया पर जुल्म व सितम जारी था, कमज़ोर ममालिक को दबाया जा रहा था, कमज़ोर लोगों को मारा जा रहा था, वो इंशाल्लाह ख़त्म होगा। और उसके बाद जो एक बैलेंस्ड, जिसे कहते हैं कि वो कोई सिस्टम आ जाए शायद, और किसी एक दो ममालिक के मोनोपोली जो पूरी दुनिया पे वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि अब एशिया भी जाग उठा है, साउथ सेंट्रल एशिया भी जाग उठा है। और अब ये तमाम चाइना, टर्की, पाकिस्तान, ये तमाम ममालिक जो हैं, अब नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये तमाम ममालिक जो हैं, जो अब इस जानिब जा रहे हैं कि सिर्फ अमन में ही तरक्की है, और अगर अमन नहीं होगा तो फिर तरक्की भी नहीं होगी। इसलिए एक दूसरे के लिए आप सहूलत का बायस बने, ना कि तकलीफ का। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।